Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter The End of Bipolarity, and as we know so many new topics have been added in this chapter, and one of the topic which is there in the revised syllabus is Arab Spring. So today we will discuss about Arab Spring. So first of all, we must know the word. What do we mean by Arab Spring? Arab Spring, it's a process of democratization which started in various countries of West Asia, which are also called the Arabian countries. So first of all, I would like to tell you the word spring. What does it mean? How and why we are calling this process of democratization as a spring? You can consider it like this कि जो spring season होता है that is the most pleasant season, है ना. पूरे seasons में सबसे pleasant जो होता है वो spring होता है. And in the similar way जो democratic form of government है that is the considered the best form of government. और इसको ये जो अरब spring आया it started in the year 2009. ये जो अरब स्प्रिंग आया इसको जो कंपेयर किया जाता है वो किस इवेंट से कंपेयर करते हैं? इसको हम कंपेयर करते हैं 1848 का जो ईयर था. In this year we have discussed all these things, we have read all these things in our 10th history book, in which we have studied कि so many series of revolutions and revolts took place in various parts of the Europe from 1848 का वो ईयर था जिसमें सीरीज ऑफ रेवोल्यूशंस हुए थे. एंड आफ्टर दैट बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट हुई थी. तो ये जो अरब स्प्रिंग की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो a series of so many protests, series of armed rebellion, series of revolutions, series of uprising of the people. इस तरह की चीज़ें हुई. कहाँ हुई? अरब कंट्रीज़ में हुई. और इसको हम कहते हैं अरब स्प्रिंग, which started in the year 2009. And this Arab Spring, this process of democratization की जो डिमांड हुई पीपल की तरफ से, जो पीपल प्रोटेस्ट, पीपल अपराइजिंग हुआ, that was started in the country Tunisia. So it was Tunisia where this process of democratization started. And what we see कि what was the reason, क्यों वहाँ प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन स्टार्ट होती है? उसका रीज़न ये है कि देयर वाज हाई लेवल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल, स्पेशली अमंग द यूथ, बिकॉज जो गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिक नहीं थी. दैट वाज अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड देयर वाज हाई लेवल ऑफ करप्शन. बिकॉज ऑफ दिस करप्शन जो ग्रोथ का जो बेनिफिट मिलना चाहिए था लोगों को वो नहीं मिल रहा था. वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, एक्यूट पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी. सो दीज वर द प्रॉब्लम्स विच पीपल वर फेसिंग. तो इन सारे प्रॉब्लम्स आई एम राइटिंग डाउन द प्रॉब्लम्स, द कॉजेज विच लेड टू द अपराइजिंग ऑफ द पीपल इन ट्यूनीशिया. द कॉज, फर्स्ट कॉज यू कैन सी करप्शन, then there was widespread poverty, and then there was high level of unemployment. So all these causes were responsible for dissatisfaction among the people. And because of this dissatisfaction there arose public protest. And very soon we find ये जो public protest था वो एक political movement में convert हो जाता है. This public protest
turns to political movement. क्यों ये जो पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहा है वो पॉलिटिकल मूवमेंट क्यों बन जाता है? बिकॉज it was the belief of the people that whatever problems they are facing, the problem of corruption, unemployment, poverty, for all these problems, who is responsible? The government is responsible for these problems. तो ये जो movement लोगों की तरफ से protest के form में start होता है, it soon takes a form of political movement against the regime which was there. The regime was undemocratic, the regime was autocratic, the regime was highly oppressive. जो उस समय ट्यूनीशिया ही नहीं, बाकी के जो कंट्रीज़ थे, अरब कंट्रीज़ हैं, उन सब में ऑलमोस्ट सेम कंडीशन वाज प्रिवेलिंग कि जो वी आर नोइंग ऑल दीज थिंग्स कि जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं, जो मिडिल ईस्ट के, वेस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं, उनकी ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पर जिसको हम कहेंगे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट हैज़ नॉट टेकन प्लेस. मतलब हम 2009 में हैं, 2010 में स्टिल इन दोज कंट्रीज देयर वाज मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो ये जो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उससे डिससेटिस्फैक्शन का आना बहुत ही नेचुरल था, बिकॉज मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल, इट इज़ नॉट एट ऑल अकाउंटेबल टुवर्ड्स द पीपल. तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो यही समझ में आने लगा लोगों को कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज प्रॉब्लम्स? आवर सिस्टम, गवर्नमेंट. तो अब उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट मूवमेंट से स्टार्ट हो जाते हैं. सो इट स्टार्टेड इन ट्यूनीशिया एंड वेरी सून इट स्प्रेड टू many countries, and in this regard there are 5 important countries in which this protest, जो ये डेमोक्रेटाइजेशन की जो प्रोसेस था वो स्प्रेड करता है मेनली 5 कंट्रीज़ में, जिनको कि हम अरब स्प्रिंग के नाम से जान रहे हैं. सो द नेम ऑफ दीज 5 countries are important for you because as I told you, some content is given in your revised syllabus. जो आपका रिवाइज सिलेबस आया है CBSE की तरफ से, उसमें सिलेबस का रिवीजन हुआ है. सम टॉपिक्स हैव बीन एडेड. तो जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनमें से कुछ जो हैं उनके कंटेंट जो है वो सिलेबस में ही दिया हुआ है. एंड वॉट एवर कंटेंट इज़ देयर इन द सिलेबस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो in order to understand you can go beyond that content, but the content which is given in that syllabus, that must be in your memory. And other than this, some other notes regarding this topic will be given to you in your snap homework. Okay, so what we find is कि there were 5, it started in Tunisia and from Tunisia it is spread to 5 countries. Egypt, Yemen, Syria, Bahrain, and Libya. So these are the 5 countries, 1, 2, 3, 4, 5, जहाँ पर कि ये स्प्रेड करता है अरब स्प्रिंग. और इन सारी कंट्रीज़ में वी फाइंड कि वहाँ पर पब्लिक अपराइजिंग होती है. और ये अपराइजिंग का जो फॉर्म है वो बहुत ही हर कंट्री में मतलब काफ़ी कुछ सिमिलर भी है, काफ़ी कुछ अलग अलग भी तरीके से होते हैं. कहीं पर ये काफ़ी वायलेंट हो जाता है, कहीं पर ये नॉन वायलेंट ही रहता है. और जब इधर से पब्लिक अपराइजिंग होगा तो ऑब्वियसली उसको क्रश किया जाएगा रेजिम की तरफ से, बिकॉज द रेजिम वाज टोटली अनडेमोक्रेटिक. तो क्रश भी किया गया जब पब्लिक अपराइजिंग हुआ, लोग उठ खड़े हुए अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उसको क्रश किया, गवर्नमेंट ने उसको क्रश किया. बट इन स्पाइट ऑफ सो मच पावर, द autocratic regimes were not able to suppress it completely. क्योंकि जब लोगों की डिमांड हो जाती है, जब लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट आने शुरू हो जाते हैं,
और जब ये वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट होता है तो फिर गवर्नमेंट कैन नॉट सर्वाइव. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू सर्वाइव इवन दो इतना वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा हो. और यही हुआ in many of the Arabian countries, many of the countries which are not Arabian countries, the countries which are affected by this Arab Spring, उन सारी कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि कई सारी कंट्रीज़ में जो बहुत पुराना रूल था वो सारे रूल्स वहाँ पे, उनके रूल वहाँ पे ऑटोक्रेटिक रूल जो था बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा था, वो ऑटोक्रेटिक रूल ख़त्म हो जाता. और इसमें जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो इजिप्ट का एग्जाम्पल है, जहाँ की 1979 से ऑटोक्रेटिक रूल होस्नी मुबारक की चल रही थी. एंड दिस ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ होस्नी मुबारक एंडेड बिकॉज ऑफ दिस अरब स्प्रिंग. So this is very important, this whatever happened in Egypt. So we will discuss the happenings of Egypt or the Arab Spring in Egypt in a very short detail. I will not go in minute details. I'm just telling you what happened and how it happened. Okay. So in Egypt, it started in 25th January 2011. 25th January is police holiday in Egypt, and this day was selected by the people of Egypt because वो police holiday था और उनका जो protest था that was against the brutality of the police which was increasing day by day under the rule of Hosni Mubarak. तो होस्नी मुबारक के रूल में जो पुलिस ब्रुटैलिटी हो रही थी, जो एट्रोसिटीज़ हो रही थी पुलिस की तरफ से, उसके अगेंस्ट ये स्टार्ट हुआ. द डेट इज़ 25 जनवरी 2011. And we see that this public uprising started in 25 January on 25 January. और जो इस अपराइजिंग को जो सपोर्ट मिल रहा था लोगों का बहुत ज़्यादा, पूरी की पूरी जो कह सकते हैं ऑल द पीपल वर दिस प्रोटेस्ट वेर विथ दिस प्रोटेस्ट. और इसमें ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था इसमें कुछ वायलेंस भी यूज़ हो रहा था, बट वायलेंस कम था. ज़्यादा जो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे नॉन वायलेंट मेथड्स को ही अडॉप्ट किया गया था. जैसे लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस किया कि हम सरकार की, गवर्नमेंट की बात को नहीं मानेंगे. तो इस तरह से जो चीज़ें थी वो नॉन वायलेंट ही स्टार्ट हुई थी. बट इनकी जो डिमांड जो थी वो क्या हो गई कि जो होस्नी मुबारक है उनको, वो उनके रूल को वो एंड करना चाहते थे. दे स्टार्टेड डिमांडिंग दैट द रूल ऑफ होस्नी मुबारक मस्ट बी एंडेड. तो ये जब डिमांड आने लगी तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से उसको सप्रेस किया जाने लगा, क्योंकि कोई भी अपने रूल को तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा. अगर उसको हमें रूल से हटाना है तो फिर वायलेंस तो आएगा ही, है ना. तो यही हुआ इजिप्ट में भी. लोगों ने जो स्टार्ट किया मूवमेंट 25 जनवरी 2011 को, उसकी डिमांड यही थी कि होस्नी मुबारक के रूल का एंड होना चाहिए. एंड इसको सप्रेस किया गया, वायलेंस हुआ. करीब 900 के अराउंड पीपल जो थे वो मारे गए इस वायलेंस में, इस दौरान जो कुछ भी वायलेंस हो रहा था. और जो उनकी इजिप्ट की जो कैपिटल थी दैट इज़ कैरो. कैरो इज़ द कैपिटल ऑफ इजिप्ट. और यहाँ पर कैरो में क्या हुआ, कैरो को वॉर जोन कहा जाने लगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ जिस तरह से लोगों का प्रोटेस्ट हो रहा था और जिस तरह से उसको सप्रेस किया जा रहा था, तो एक तरह का टाइप ऑफ सिविल वॉर की कंडीशन फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड इट वाज देयर इन कैरो इन द होल इजिप्ट. और कैरो जो था वो उसका सेंटर बना हुआ था, जिसको कि वॉर जोन डिक्लेयर किया गया. एंड इसके बाद हम क्या देखते हैं कि बहुत लंबी बात नहीं है, 2011 के ही फरवरी में, इट स्टार्टेड इन जनवरी 2011 एंड इन फरवरी 2011 इट वाज डिक्लेयर्ड कि होस्नी मुबारक के रूल का एंड हो गया. सो फरवरी 2011 में होस्नी मुबारक के रूल का एंड होता है और उसकी जगह पे
ऐसा नहीं हो सकता है कि तुरंत में उसका रूल एंड हुआ और एक डेमोक्रेटिक रेजिम इस्टेब्लिश होगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बीच में एक ट्रांजिशनल पीरियड चलता है, तो वहाँ पर भी मिलिट्री रूल आ जाता है, और आफ्टर दिस मिलिट्री रूल कुछ दिनों तक ये रूल रहता है। देन जून 2012 में वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, और इस इलेक्शन में क्या होता है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन था, और इस इलेक्शन में मोहम्मद मोर्सी जो हैं वो जीत जाते हैं और वो बन जाते हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट। तो चीज़ें इस तरह से हो रही हैं कि फरवरी में मुबारक के रूल का एंड होता है, और जून 2012 में इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शन के साथ ही एक मोहम्मद मोर्सी जो है वो बन जाते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट। बट व्हाट वी फाइंड कि ये जो मोहम्मद मोर्सी जो प्रेसिडेंट बनते हैं, he also started एक इस्लामिक लीनिंग वाली कॉन्स्टिट्यूशन को वो अडॉप्ट करते हैं। तो जो जब फिर से इस्लामिक लीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, तो दैट विल नॉट बी द कंप्लीशन ऑफ द अपराइजिंग जिस रीज़न से हुआ था, जिस तरह के रूल वहाँ पर थे, उसको हटाने के लिए हुआ था। एंड फिर से आफ्टर द रिवोल्यूशन, आफ्टर द इलेक्शन क्या हो रहा है कि फिर से उसी तरह की चीज़ें होने लगी। तो देन अगेन पीपल्स अपराइजिंग स्टार्टेड, लोगों का प्रोटेस्ट, लोगों का अपराइजिंग फिर से स्टार्ट हो जाता है इस मोहम्मद मोर्सी के रूल के अगेंस्ट। और उसके बाद 2014 में वहाँ फिर से इलेक्शंस होते हैं, और इस इलेक्शन में जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं एल्सिस, वो बन जाते हैं प्रेसिडेंट। और एट प्रेजेंट हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस थी ये चल रही है, बिकॉज कभी भी नेवर डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस कभी एंड नहीं होती है। जिस दिन हम मान लेते हैं कि अब डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस एंड हो चुकी है, उस दिन डेमोक्रेसी का एंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जो तभी तक जिंदा रहती है जब तक हम उसके लिए लड़ते हैं। जिस दिन हम लड़ना बंद कर देंगे डेमोक्रेसी के लिए, ये सोच के कि एवरीथिंग इज़ फाइन, अब हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उस दिन डेमोक्रेसी ख़त्म होना शुरू हो जाती, वी कैन से इट। तो हम कभी नहीं कह सकते कि हमारा डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस ओवर हो गया। डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है, बट स्टिल देयर विल बी ऑलवेज नीड टू watch this government in all the countries. I'm not talking about a single country. ये डेमोक्रेसी चीज़ ऐसी है, ये पावर चीज़ ऐसी है कि जो भी पावर में रहता है वो उसको मिसयूज़ करना चाहता है, जो भी पावर में रहता है वो उसको अब्यूज़ करना चाहता है। तो हम वी द पीपल आर देयर टू वॉच, वी आर देयर एज वॉच डॉग्स, कि हमें देखना है, रखवाली करनी है अपने डेमोक्रेसी की, अपने राइट्स की, कि कोई भी रूलर उस तरह का ना बन जाए कि हमारे राइट्स को वो हमसे छीन ले और अपना ऑटोक्रेटिक रूल स्टार्ट कर दे। सो इस तरह से जो अरब स्प्रिंग था वो इजिप्ट में आगे बढ़ता है, और जो अदर कंट्रीज़ हमने डिस्कस किया, लीबिया, सीरिया, बहरीन, उन सब में भी ये सिविल वॉर्स कई सारी कंट्रीज़ में स्टार्ट हो जाते हैं और डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ वो बढ़ चलते हैं। इसी को हम अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट वर द रीजंस फॉर दिस अरब स्प्रिंग? आखिर ये अरब स्प्रिंग 2009 में जो स्टार्ट हो रहा है, क्यों, क्या रीज़न था इस अरब स्प्रिंग के स्टार्ट होने के पीछे? तो रीज़न जो थे वो दो रीज़न थी, एक इंटरनल रीज़न और दूसरा एक्सटर्नल रीज़न। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इंटरनल रीज़न। सो I'll write down the causes. The first is internal causes, and what will be there in the internal causes? Internal causes are those causes which are there within the system. वो सिस्टम के अंदर की प्रॉब्लम्स थी, और सिस्टम के अंदर की जो प्रॉब्लम्स थी दैट वाज कॉजिंग लॉट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल। क्या प्रॉब्लम्स क्या थी? सिस्टम के अंदर की प्रॉब्लम थी करप्शन की, प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा था, बट ग्रोथ का जो बेनिफिट मिलना था वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप वाज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो था।
जो भी वॉट एवर ग्रोथ वॉज देयर, उसका फ़ायदा जो था वो एक ग्रुप को ही मिल रहा था जो कि एलीट ग्रुप था। तो ये जो एलीट ग्रुप है जिसको कि फ़ायदा मिल रहा है उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ थी वो सिस्टम, बट जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थे दे वर टोटली डिप्राइव्ड ऑफ एवरीथिंग। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जो इकोनॉमिक गैप था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो चुका था और जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थे वो बिना वेल्थ के थे, बिना वेल्थ तो दूर की बात, उनके जो बेसिक नीड्स हैं वो भी नहीं पूरे हो रहे थे। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही थी करप्शन की, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की, वास्ट इकोनॉमिक गैप जो आ रहा था रिच और पुअर के बीच का, ये सारी चीज़ें जो थी लोगों के अंदर में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन कॉज कर रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था और अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक फॉर्म जिसको हम कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, वो बहुत ज़्यादा था। एजुकेटेड पीपल वर अनएम्प्लॉयड, और जब एजुकेटेड पीपल अनएम्प्लॉयड होते हैं तो फिर क्या होती है, उनका जो डिससेटिस्फैक्शन का लेवल होता है वो बहुत हाई हो जाता है, बिकॉज दे आर एजुकेटेड स्टिल दे आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो रीजंस थे ये इंटरनल कॉजेज में आते हैं जो कि सिस्टम के अंदर की प्रॉब्लम्स थी, एंड पीपल रियलाइज्ड कि ये सारे प्रॉब्लम्स के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा जो रेजिम है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो कैसे हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा हमें मिलेगा, हाउ वी विल गेट रिड ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। In order to get rid of all these problems, there is need to overthrow the government. जो गवर्नमेंट है, जो ऑटोक्रेटिक रूल है, उसको ओवरथ्रो किया जाए, उसको हटा दिया जाए, देन ओनली हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। और इस तरह से ये जो डिससेटिस्फैक्शन का लेवल था दैट बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर दिस अरब स्प्रिंग। नाउ वी कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज एक्सटर्नल कॉजेज। And these external causes, these are very important because हम कहेंगे कि जो अरब स्प्रिंग आया उसके लिए जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था वो था हमारा सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, वॉट एवर सोशल मीडिया, जो आप इंस्टाग्राम, ये चीज़ें जो यूज़ होती हैं, ये सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा कॉज बना इस अरब स्प्रिंग को लाने का। डिससेटिस्फैक्शन था लोगों में, पहले भी था, लेकिन लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था क्योंकि वहाँ पर लोगों को राइट्स नहीं होते थे, फ्रीडम नहीं होती है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था जहाँ पर कि वो आपस में मिल सके, आपस में एक दूसरे के साथ व्यूज़ को एक्सचेंज कर सके। तो ये सोशल मीडिया ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर हर कोई अपने व्यूज़ को लिख रहा है, हर कोई अपने साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है, ब्रुटैलिटी, एट्रोसिटीज़, ऑपरेशन, वॉट एवर इज हैपनिंग विथ एनी बॉडी इन द कंट्री, इन द रिस्पेक्टिव कंट्री, और कंट्री के बाहर भी जो कुछ भी हो रहा है इन अदर वेस्ट एशियन कंट्रीज, उसकी भी जानकारी लोगों को मिलने लगी। तो सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बना जिसके कारण लोग जो हैं वो उनके अंदर अवेयरनेस आई कि किस तरह के एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं हमारे लोगों के साथ, और उनके अंदर ये भी अवेयरनेस आया कि बाकी के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कितनी ज़्यादा लोगों को फ्रीडम मिली हुई है, वहाँ पर लोग कितने ज़्यादा राइट्स को यूज़ करते हैं। हम उनके, अगर हम अपनी कंडीशन की कंपैरिजन उनसे करें तो हम बहुत नीचे हैं राइट्स के मामले में। साथ ही साथ और प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड हैं उनके साथ, पॉवर्टी, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक कंपैरिजन करना उन्होंने स्टार्ट किया, एक उनको प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पर वो अपने व्यूज़ को रख रहे थे। नॉट ओनली दिस, इसमें क्या हो रहा था कि किसी एक जगह, मान लो कुछ जैसे ट्यूनीशिया में स्टार्ट हुआ अपराइजिंग, अब ये अपराइजिंग जो स्टार्ट हो रहा है उसको सोशल मीडिया पे शेयर किया गया, तो जो अदर कंट्रीज़ के लोग हैं जो उस अपराइजिंग के बारे में सुन रहे हैं उनको ये समझ में आ रहा है कि जैसे ट्यूनीशिया के लोगों ने स्टार्ट किया वैसे हम भी कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो सेम, जैसे ट्यूनीशिया के लोग हैं वैसे ही हम भी हैं, जिस तरह के ऑपरेसिव सिस्टम में वो रह रहे हैं तो वैसे ही हम भी ऑपरेसिव सिस्टम में रह रहे हैं, तो वी कैन ऑल्सो स्टार्ट इट। तो जो सक्सेस स्टोरीज लोगों ने अपने शेयर करने स्टार्ट किए उसका असर पड़ने लगा, और ये जो सोशल मीडिया, जो फेसबुक है, ये बहुत बड़ा जरिया बना इस अरब स्प्रिंग को लाने का। वी कैन से कि विदाउट
these social media, the Arab Spring was not possible. ये होता ही नहीं अरब स्प्रिंग अगर सोशल मीडिया ना होता, क्योंकि डिससेटिस्फैक्शन तो बहुत पहले से था, प्रॉब्लम्स तो बहुत पहले से थे, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट वो अपने आप को मोबिलाइज नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को यूनाइट नहीं कर पा रहे थे। सोशल मीडिया ने उन्हें वो प्लेटफॉर्म दिया कि वो एक दूसरे से जुड़ पाए और अपने व्यूज़ को रख पाए, और उन्होंने सारा कुछ प्लानिंग, एवरीथिंग वाज प्लान्ड कि कैसे कब जमा होना है। जैसे कि हमने बताया 25 जनवरी 2011 को इजिप्ट में लोग जमा होते हैं, वो कैसे जमा हुए, कैसे कम्युनिकेशन हुआ? थ्रू दिस फेसबुक एंड ट्विटर। ये चीज़ें थी जो लोगों को जोड़ रही थी। तो दिस बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर अरब स्प्रिंग। सो इन दिस वे ये अरब स्प्रिंग स्टार्ट होता है, जिसमें एक तरफ हमारे एलीट ग्रुप है जो कि रूलिंग एलीट है, और दूसरी तरफ कॉमन पीपल हैं जो कि अब पूरी तरह से अवेयर हो चुके हैं, जो कि अब पूरी तरह से दे आर रेडी फॉर द कलेक्टिव एक्शन। अब वो अकेले नहीं हैं, जो सोशल मीडिया है वो उन्हें जोड़ चुका है, एंड नाउ दे आर रेडी फॉर कलेक्टिव एक्शन। और दिस इन दिस वे दिस अरब स्प्रिंग जो है वो स्टार्ट होता है और वो आगे बढ़ता है। एंड नाउ वी विल सी दैट दिस अरब स्प्रिंग इज स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी ये चल रहा है। अभी 2019 में जैसे कई सारी कंट्रीज़ हैं, लाइक सूडान है, देन अल्जीरिया, इराक, लेबनान, ये सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें अभी भी डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस के लिए जो एफर्ट्स हैं, जो अपराइजिंग्स हैं, वो अभी भी हो रहे हैं। देन लीबिया जैसी कंट्री है जहाँ की, सीरिया जैसी कंट्री, लीबिया जैसी कंट्री जहाँ की सिविल वॉर अभी भी चल रहा है। तो ये अरब स्प्रिंग जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इट इज़ स्टिल एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अरब स्प्रिंग. So you will get the notes from that snapper only, and now after this we have to go to a new topic, and that is CIS, Commonwealth of Independent States. So what we find कि जब USSR डिसइंटीग्रेट होता है तो with the disintegration of USSR, this Commonwealth of Independent States has been formed. तो ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्यों फॉर्मेशन हुआ, इसके पीछे क्या रीजंस थे, इनकी क्या मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. तो व्हाट वी फाइंड दैट दिस CIS is intergovernment, regional intergovernmental intergovernmental organization. Okay, so this is called regional intergovernmental organization, जो कि यूरेशिया में है. यूरेशिया यूरोप और एशिया के जो कंबाइंड पार्ट है हम उसको यूरेशिया कहते हैं. और 8 दिसंबर 1991 जबकि USSR जो है वो एंड की तरफ बढ़ चुका था पूरी तरह से, 8 दिसंबर 1991 को 3 जो इम्पॉर्टेंट रिपब्लिक्स थे USSR के, दैट इज़ रसिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, इन तीनों रिपब्लिक्स ने ये डिक्लेयर किया कि USSR जो है वो एंड होने जा रहा है, USSR एंड हो जाएगा और उसकी जगह पे एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो आने जा रहा है. On 8 December it was declared by these 3 republics, Russia, Ukraine and Georgia. And after this we see on 21st December
अल्माटा प्रोटोकॉल वाज साइंड, ओके। और ये जो डिक्लेरेशन होता है बेलारूस यूक्रेन और बेलारूस यूक्रेन एंड रसिया का, दैट इज़ ऑन 8 दिसंबर, और उस दिन ही इसके फॉर्मेशन की डिक्लेरेशन हो जाती है। बट जो अकॉर्ड साइन होता है अल्माटा अकॉर्ड, दैट वाज साइंड ऑन 21 दिसंबर। एंड एक्चुअली इसी अल्माटा अकॉर्ड से हम CIS को मानते हैं कि वो उसका फॉर्मेशन होता है। सो वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन रिगार्डिंग CIS in the next class.